اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی نظام کے اگلے مراحل کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی 22 سے 24 مئی تک جمع ہوں گے۔ 25 مئی سے 26 مئی تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 3 جون سے 4 جون تک ٹاؤن کونسل اور سٹی کونسل کے ایوان کی تشکیل مکمل کی جائے گی۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی نظام کے اگلے مراحل کا آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی نظام کے اگلے مراحل کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی 22 مئی سے 24 مئی تک جمع ہوں گے۔ 3 جون سے 4 جون تک ٹاؤن کونسل اور سٹی کونسل کے ایوان کی تشکیل مکمل کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی نظام کے اگلے مراحل کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ثانوی بورڈ کے ناظم امتحانات کا انوکھا اقدام، ایڈمٹ کارڈ میں تصویر کی تبدیلی کے باوجود طلباء کو امتحان دینے کی اجازت دے دی۔ نالائق طالب علم کی جگہ ہونہار طالب علم سے امتحان دلوانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظم امتحانات کے فیصلے سے نقل مافیا کی چاندی ہو گئی۔ انچولی میں قائم حیدر ایجوکیشنل ورلڈ اسکول کی سنگین غفلت، 9ویں جماعت کی طالبہ امتحان دینے سے محروم ہو گئی۔ والدین کی شکایت پر ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا ایکشن، اسکول کو نوٹس جاری کر دیا، 7 روز میں جواب طلب۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے تحت منعقدہ امتحانات کے 9ویں روز بھی طلبہ لوڈ شیڈنگ کا نشانہ بنے رہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ نے کہا کہ طالب علم کے ایڈمٹ کارڈ میں تصویر مختلف ہونے کے باوجود بھی پیپر لینے کی ہدایت کی ہے۔ اس خط کا مقصد طالب علم کو مشکل سے بچانا ہے۔ یا کہیں پہ جو ہے وہ تصویر کا پرابلم آئی ہے یا کہیں پہ سینٹر کا نام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا تجربہ ہمارا تھا، تو ہم نے اگر کہیں پہ ہے تو ہم نے یہی بچوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ بچے کسی بھی سینٹر پہ پہنچے تو وہ بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو اور بچوں کو دشواری نہ ہو، اسی سینٹر میں اس کو بچے کو بٹھایا جائے تاکہ بچے کا امتحان ہو سکے۔ فیڈرل بی ایریا انچولی سوسائٹی میں قائم آل حیدر ایجوکیشن ورلڈ اسکول کی غفلت کے باعث طلبہ امتحان دینے سے محروم ہو گئے۔ والدین کا الزام ہے کہ اسکول کی جانب سے بورڈ میں انرولمنٹ فارم جمع کرایا گیا اور نہ ہی امتحانی فارم بھیجے گئے۔ والدین کی جانب سے ایڈیشنل ڈائریکٹر انسپیکشن رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیع جاوید ملا کو بھیجی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسکول انتظامیہ نے فیس وصول کی لیکن بورڈ آفس میں فارم جمع نہیں کروائے۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ سید زبیر راشد، 321۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے خبردار ہوشیار، سندھ حکومت نے اسپتالوں میں توڑ پھوڑ، املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر صحت ازا پیٹرو نے اسپتال عملہ اور سرکاری پراپرٹی کو نقصان روکنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس اور زیبسٹ کے اشتراک سے مقامی ہوٹل میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں طبی ماہرین سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر صحت سندھ ازرا پیچوہو نے اسپتال کے عملے اور اسپتال کی پراپرٹی کو نقصان سے روکنے کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ کے ذمہ دار مریض، ان کے لاواحقین ہو یا غفلت کے مرتکب ڈاکٹر، سب سے یکساں سلوک کیا جائے گا۔ ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ مریض کے لاواحقین کو مریض کی تشخیص بتائیں۔ عملہ ہوتا ہے اسپتال کا، اس کے اوپر جو ہے اس کی ماردھار کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں اسپتال کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دونوں طرف سے ہم نے اس میں انشور کیا ہے کہ ایک تو پیشنٹ کو باور کرایا جائے، پیشنٹ کے رشتہ داروں کو کہ کس قسم کی کا مرض ہے لاحق مریض کو اور کس طرح سے وہ علاج کریں گے۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکریٹری قاسم سومرو نے بتایا کہ ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے اسکولوں میں بھی آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کے اندر ہم آف کورس اس کو آج ہمارے اسکول ڈپارٹمنٹ کے بھی کسی بندے کو یہاں ریپرزینٹ کو ہونا چاہیے تھا، سو دیٹ وی کین لیٹ جنریشن کم ٹو نو کہ ہم اس معاملے میں کتنے سینسٹیو ہم کیسے آگے جانا چاہتے ہیں اور ہاؤ ٹو ڈو دس۔ ازرا پیچوہو نے مزید بتایا کہ آگاہی مہم کے سلسلے میں میڈیا پر بھی مہم چلائی جائے گی تاکہ عام آدمی تک بھی معلومات پہنچ جائے۔ کیمرامین ناگر رفیق کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ اور ناظرین، میئر کراچی کے لیے جوڑ توڑ، کراچی کی 246 میں سے 237 نشستوں کے نتائج مکمل۔ پیپلز پارٹی 98 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ جماعت اسلامی کی 86 نشستیں۔ پیپلز پارٹی سے دیگر جماعتوں کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے رابطے ہوئے۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار کی حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ جماعت اسلامی نے بھی اکثریت پوری ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مختلف جماعتوں کے بلدیاتی نمائندوں کا فارورڈ بلاک بننے کی اطلاعات بھی سامنے آ گئی ہیں، جبکہ صوبائی وزیر سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ جتنے ووٹ درکار ہے اس سے کہیں زیادہ رابطے میں ہیں۔
कि कराची का मेयर कौन होगा। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए शहरियों ने मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नेमुर रहमान से उम्मीदें लगा ली। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सही है, कराची में काम कर लेगा, हुकूमत उनकी है, मेयर को इसको क्या, वो क्या कर लेगा, वो वही बोलेगा कि फंड नहीं मिल रहा ये वो, इसलिए मुर्तज़ा वहाब से, ताकि इलेक्शन में लोगों का सामना उन्हीं को करना पड़े। हकीकत देखी जाए तो मेरठ से हट गए तो कराची शहर में अगर तरक्याती काम वही पार्टी कर सकती है जिसकी सूबाई गवर्नमेंट होगी, तो इस लिहाज से मेरा राय यही है कि मेयर मुर्तज़ा वहाब को ही आना चाहिए। ये तकरीबन जो है ना कराची के मसाइल या जमात इस्लामी हो सकती है या PTI हो सकती है। ये मसाइल अल्लाह ही हल करेगा, इनके बस के काम नहीं है, ये सब आ गए हैं इसमें, सबके हुकूमतें चेक कर ली हैं, जो मुल्क के हालात हुए हैं इस वक्त, ये अल्लाह ही हाफिज है। अब आपको बताएं कि कराची में PTI को बड़ा झटका। MNA महमूद मौलवी ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। महमूद मौलवी का कौमी असम्बली की रुकनियत भी छोड़ने का ऐलान। उन्होंने कहा कि मुझे किसी जमात से कोई पेशकश नहीं हो रही। सियासी शरपसंदी और पाक फौज के खिलाफ साजिश, कप्तान सियासी तन्हाई का शिकार होने लगे, एक एक करके खिलाड़ी साथ छोड़ने लगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और सूबाई सीनियर नायब सदर महमूद मौलवी ने भी कप्तान को अलविदा कह दिया। उन्होंने कौमी असम्बली की नशस्त से भी मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और एज एन MNA, सिटिंग MNA हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, जबकि मेरी सीट बेसिकली मुझे ना टिकट का प्रॉब्लम है, मुझे टिकट भी खान साहब ने दिया और पार्टी ने बड़ी इज्जत दी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद मौलवी ने मजीद कहा कि मैं फौज के खिलाफ न कभी गया और न कभी जाऊंगा। PTI ने वो काम कर दिया जो कभी भी भारत नहीं कर सकता था। मेरे लिए ऐसी 100 चीज़ें कुर्बान हमारे फौज के ऊपर, ये वो काम हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका, ठीक है ना। आज हमने वो काम किया कि जी वहाँ पे जाके मॉन्यूमेंट्स तोड़े, हमने रेडियो स्टेशन को जो है वहाँ पे जो हुआ, हमारे देखे कौन लोग थे ये मुझे नहीं मालूम। महमूद मौलवी ने वाजे किया जो लोग शरअ अंगेजी में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI के जो लोग मुलविस थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, जो लोग मुलविस थे वो साबित हो, उनको मिलनी चाहिए। उसकी वजह है कि अगर हम एग्जाम्पल आज नहीं बनाएंगे, मैं तो कहूँगा PTI की लीडरशिप ये अनाउंस करे कि जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिले, जो लोग उनको भड़काने वाले थे उनको भी सजाएं मिले। महमूद मौलवी ने मजीद कहा कि कई और रहनुमा भी PTI से खफा हैं, वो भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। साबिक ब्यूरोक्रेट इमरान अता सुमरो की रस्म कुल अदा कर दी गई, जिसमें सियासतदानों, सरकारी अफसरान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। 21 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर इमरान अता सुमरो के लिए ऑफिसर्स क्लब बात आइलैंड में सोयम का एहतमाम किया गया, जिसमें मरहूम के साल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। रस्म कुल में पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो, सिंध असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन गुलाम कादिर चांडियो, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सोहेल राजपूत समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, दीगर अफसरान व अहम शख्सियात ने शिरकत की। देखें, ऑफिसर तो सब ऑफिसर होते हैं और ये 21 ग्रेड का ऑफिसर था और कुछ और हयाती होती तो और 22 में भी आ जाता, और मुझे है उसके साथ काम करने का तजुर्बा, साल डेढ़ का, 2 साल का। मैंने उसको हमेशा चाबुक दस्त पाया, आउटपुट दे रहा था, चीज़ों को समझता था। सर मेरे पास अल्फाज ही नहीं है मैं एक अपने भाई के लिए अदा कर सकूं। बहुत ही शफीक, और मैंने इसको देखा काम करने में की जो सलाहियत थी इसमें ना, बड़ा दिलेर आदमी था। बहुत देखें, ऑफिसर तो वो बहुत अच्छे थे ही, मेरे साथ उन्होंने काम भी किया बहुत शुरू में सर्विस के दिनों में, तो उनको रूल्स पे, लॉ पे बड़ी अच्छी कमांड थी। इस मौके पर शुरा ने इमरान सुमरो के भाई कामरान सुमरो और दीगर लवाहिकीन से ताज़ियत की। कैमरा टीम के साथ आज़ाद नूरियो, सिटी 21। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी खिदमत को कोई भुला नहीं सकेगा। मरहूम को अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाएगा। इमरान अता सोमरो की ज़िंदगी से मुतालिक लोगों ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं।
बहुत ही बासलाहियत और काम करने वाले, डिलीवर करने वाले अफसर थे। और ये अचानक जो एक वाक़या हुआ, अचानक से उनकी रहलत हो गई है और ये किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इतना सेहतमंद आदमी जो है अचानक से इस तरह से उसकी डेथ हो सकती है। जी, इमरान ना भूलने वाली शख्सियत, सबके काम आने वाली शख्सियत और इंतहाई अफसोस हुआ उनकी इस नागहानी जो हमसे वो बिछड़ गए और किसी को यकीन भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक थे। इमरान अता बहुत ही लायक फाइक जेंटलमैन इंसान थे जिसकी इस अचानक मौत पे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ऐसे बंदे, ऐसे अफसर दुनिया में बहुत कम होते हैं। एक बहुत अच्छा इंसान और नोबल पर्सनालिटी थी जिसने हमेशा कोशिश ये की थी कि न फ़कत अपने दोस्तों को बल्कि जितने भी आम लोग हैं उनको जितना भी वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। इमरान साहब एक बेहतरीन इंसान थे, एक बेहतरीन अफसर थे और इंतहाई मुखलिस अपने काम के बारे में, अपने करियर के बारे में और खुदा तरस आदमी था। इमरान अता सुमरो हमारी सर्विस के हीरो थे। बहैसियत इंसान मैंने उनको हमेशा इंतहाई नफीस सुलझा हुआ पाया। हमने एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर जो है ख़ास करके सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने खोया है और इस दुख के साथ कि वो बहुत जल्दी चले गए। और इमरान साहब एक कोलीग और दोस्त के साथ साथ एक बहुत ही शफीक और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। कभी भी उन्होंने किसी को एक कोलीग की नज़र से नहीं देखा। पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी उसकी तारीफ़ कर सकूं। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारी रहमत पे जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इमरान अता सुमरो जो है एक बहुत ही डिसेंट आदमी था, एक बहुत ही उम्दा आदमी था और आप ये समझिए कि मेरा तो बहुत करीबी दोस्त था। मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत मानसून से मुतालिक इजलास हुआ। DCs PTMA बल्दिया उस्मा के अफसरान की शिरकत। कमिश्नर कराची ने वाटर बोर्ड को पंप्स को चेक करने का हुक्म दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें मुतवक्का मानसून बारिशों से निपटने के लिए इकदामात का जो है वो जायजा लिया गया है। इस इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बल्दिया उज़्मा के अफसरान, जिलाई बल्दियात, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड व दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में मुतवक्का बारिशों से निपटने की तैयारियों से मुतालिक जो है अहम उमूर ज़ेरे बहस आए हैं, जबकि बरसाती नालों की सफाई, मशीनरी की दस्तयाबी और अफरादी कुव्वत की फराहमी समेत हंगामी मनसूबों का जायजा लिया गया है। इस अहम तरीन इजलास में फैसला किया गया है कि मुतालिका इदारे मानसून बारिशों के नुकसानात से बचाव के लिए हंगामी मंसूबे को जुमरात तक जो है हतमी शक्ल दे दें और कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दें। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने जिला में चौकिंग पॉइंट्स की भी निशानदेही की है। तमाम बरसाती नालों के चौकिंग पॉइंट्स को खोलने के लिए इन पर हंगामी बुनियादों पर सफाई का काम जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा। इजलास में गुज़िश्ता साल के तजर्बे को मद्देनजर रखकर फलकनाग स्टॉक एक्सचेंज और यूसुफ गोड पर पानी की निकासी को बेहतर बनाने के लिए तरजीही इक़दाम। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ टिम्बर मार्केट के ताजरों का मीटर घूम गया। ताजरों ने 2 घंटे तक गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब ताजिरों के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। चेयरमैन शर्जील गोपलानी साइकिल पर सवार हो गए, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे भी लगाए। T21 से बात करते हुए शर्जील गोपलानी ने गवर्नर सिंध पर शदीद तनकीद की और कहा कि गवर्नर साहब ने घंटी तो लगा दी है मगर मसाइल नहीं सुने जाते। ये सिर्फ घंटी जो है वो दिखावे के लिए है और फोटो सेशन हाउस है, ये गवर्नर हाउस नहीं है, क्योंकि हमें कोई किसी किस्म की ये नहीं कहा गया कि हमारी लोड शेडिंग खत्म होगी या नहीं होगी। 1-1.5 साल से हम जलील और ख्वार हो रहे हैं शहर में। जनरल सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद मोहम्मद अहमद शमसी ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, हमने मुतालबा किया कराची के तमाम ताजिरों ने कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए और मल्टीपल कंपनियों को, एक से ज़्यादा कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएं ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो कि जिस कंपनी से चाहे वो बिजली ले सकें। शर्जील गोपलानी ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है और मुतालबात
हल न होने की सूरत में और एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। जेल रोड के इलाके में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से तजावज़ कर गया। इलाका मकीन तवील लोड शेडिंग से अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मजीद क्या है तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा हमना निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कराची के इलाके जेल रोड में मौजूद हूँ, जहाँ बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, यहाँ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? मेरे ख्याल में तो 15 घंटे तो है ही पक्का। 15 से 16 घंटे बयाना है। सारे दिन में 2 घंटे लाइट आती है और हम इतने परेशान हैं। छोटे बच्चे हैं, बीमार माँ बाप हैं, उनको देखें, बिजली को देखें। हर इंसान जो है वो जनरेटर या इस तरह की यूपीएस से अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन जो हम पे गुजरती है इस गर्मी में, ऐसी गर्मी में, और ऊपर से पानी भी बंद हो जाता है, गैस भी बंद हो जाती है। चलो लाइट तो हो, बंदा थोड़ा सांस तो ले, सांस लेने की हम गुंजाइश नहीं है हमारे पास। बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा, ये बताइएगा, जो बीमार हजरात हैं, मर्द और ख़वातीन हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है इस तरह की गर्मी में बिजली के बगैर सर्वाइव करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि 3 टाइम बीपी हाई की टैबलेट खाने के बावजूद बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। सुबह 8 से 11:30 बजे तक लाइट जाती है, 1 से 4:45 बजे लाइट जाती है, फिर 5:30 से 8:30 बजे लाइट जाती है, फिर 11 से 12:30 या 12:45 तक जाती है, फिर रात को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जाती है। तो आप ये देखें कि इस वक्त पानी ना होने की सूरत में घर में कोई काम नहीं हुआ। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ जेल रोड के इलाका मकीन मौजूद हैं, जिनका यही कहना है कि यहाँ बिजली की 15 से ज़्यादा जो घंटे हैं बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ जो बिल है वो भी इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो काफ़ी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मोहतमिम जामे बनूरिया की वफ़द के हमरा बहादुराबाद के मरकज़ आमद मुस्तफ़ा कमाल और राबता कमेटी अरकान से मुफ्ती नईमान नईम ने मुलाकात की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते अपने नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। शोएब, इस मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कभी जो है एमकेएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर जामिया बनूरिया आलिया के मोहतमिम मुफ्ती नुमान नईम वक्त के हमरा पहुंचे थे। इस सिलसिले में उनकी जो है वहां पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और अरकान राबता कमेटी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है, जबकि मरदमशुमारी से मुताबिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। एमकेएम रहनुमा की जानिब से मरदमशुमारी की आड़ में कराची की आबादी को लापता करने से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुफ्ती नुमान नईम को आगाह किया गया है, जिस पर उनकी जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीनदहानी करवाई गई है। इस मौके पर अरकान राबता कमेटी अरशद वोहरा, खालिद सुल्तान भी मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। मुल्क की कशीदा सियासी सूरत हाल पर ताजर बरादरी भी तशवीश में मुब्तला हो गई। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला बोले, महंगाई और सियासी हालात से छोटा ताजर ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। सियासी कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात, छोटे ताजिर की मुश्किलात में इजाफा। सदर ओल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला कहते हैं, सियासी जमातों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है, मुल्क की किसी को कोई फिक्र नहीं। मौजूदा हालात में सबको यकजा होने की ज़रूरत है। के लिए माज़रत के साथ ये कहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इस वक्त जो मकसद है वो सिर्फ सीटों पे बैठना है, ना कि पाकिस्तान के बारे में सोचना है। ऐसी सिचुएशन में इस वक्त आपका काम है कि आप पाकिस्तान के लिए सोचें, हालात को देखें, मिल के बैठें। हमाद पूनावाला ने 9 मई के वाक़यात को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, इदारों और ताजरों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने देखा 9 मई को जो हुआ वो काबिल कबूल नहीं है। अफवाज के लिए जो काम किया गया, जिस तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स की गई, लोगों में इंतशार फैलाया गया, जो चीज़ें हुई, हम उसको कंडेम करते हैं। ताजिर रहनुमा ने मुल्क की कशीदा सूरत हाल को अफाम व तफहीम से हल करने पर जोर दिया है। कैमरामैन गुलफाम के हमरा काविश मेमन, 321। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नेशनल कोचिंग सेंटर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। टाटिन ट्रैक जगह जगह से उखड़ चुका। सहूलियात के फुकदान के बावजूद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेंबरशिप फीस माहाना 1000 रुपये कर दी है। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में खेलों की सहूलियात भी खत्म होती जा रही हैं। शहर कायद में आलमी मियार का एक भी टार्टन ट्रैक मौजूद नहीं। नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद ट्रैक 10 साल पहले ही अपनी उम्र मुकम्मल कर चुका। अब जगह जगह उखड़ने के बायस ट्रैक तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। बहुत मुश्किल हो गया है
क्योंकि पहले यही पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का ट्रैक था। इसकी तकरीबन इसको 10 साल हो गए इसकी, यानी कि ख़त्म हो गया। इसकी ये वारंटी होती है कि एक मद होती है कि इस लेवल तक लगाया जाए, तो इसके ये पूरा ख़त्म हो चुका है। लास्ट जो डॉक्टर फामिदा मिर्ज़ा थी उसने कहा कि हम इस ट्रैक को बना रहे हैं, सारी चीज़ के MO साइन हो गया है, PC1 हो गया है, सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक इसका कोई यानी कुछ हुआ ही नहीं है। उधर सहूलियात के फकदान के बावजूद पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने मेंबरशिप फीस माहाना 1000 रुपए कर दी है। ट्रैक की खस्ता हाली के सबब खिलाड़ियों की इंजरी मामूल बन चुकी है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और सिंध हुकूमत को कराची में नए टार्टन ट्रैक लगाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात करने की जरूरत है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। अदाकारा निम्रा बुच्चा ने पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर दिया। निम्रा बुच्चा को UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड से नवाजा गया। आलमी अवार्ड्स मिलने की खबर अदाकारा की जानिब से मद्दाहों से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर की गई, जिस पर निम्रा बुच्चा ने 3 अवार्ड्स के हमरा तस्वीर पोस्ट की और साथ कैप्शन भी लिखा। निम्रा बुच्चा को फिल्म कमली पर क्यूरेटर्स चॉइस अवार्ड, पोलाइट सोसाइटी फिल्म वाला चॉइस अवार्ड और चैंपियन चेंज पर अवार्ड मिला है। अपनी पोस्ट में निम्रा बुच्चा ने UK एशियन फिल्म फेस्टिवल का शुक्रिया अदा भी किया। दूसरी जानिब निम्रा बुच्चा की पोस्ट पर मुबारकबाद का तांता बंध गया, जबकि नादिया अफगन, यासरा रिजवी, सानिया सईद, शर्मीन उबैद चिनॉय, सबा कमर, महविश हयात और सरमत खूसट समेत मारूफ फनकारों ने भी निम्रा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना।